ساتھ قذاب کے ساتھ جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مناظرہ ہوا ہے تو اس نے یہ سامنے یہ عبارت بھی رکھی تھی یہ بقول مرزا انجینئر کے مرزا انجینئر کے. تو باقی شاہ جی آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی ان کو خود سوال کرنے دیں. جی کریں جناب, کیا ہے جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی تو میں نے وہ ویڈیو میں دیکھا تھا مرزا صاحب کی کہ نا وہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب. جی جی انہیں کی اچھا, ان کی ویڈیو, کیا نام ہے ویڈیو کا؟ ویڈیو انہوں نے ایک کلپ تھا وہ میں نے اس میں دیکھا تھا. انہوں نے یہ بات نہیں, وہ کی تھی کلپ جو تھا وہ کون سا کلپ دیکھا آپ نے؟ جی وہی بولنے لگا ہوں کہ انہوں نے بات کی تھی کہ جب ان کا مناظرہ ہوا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا اور قادیانی کا جو بڑا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اور ان کا مناظرہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ عبارت رکھی تھی کہ آپ کے جو بزرگ ہیں نا انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جواب میں بولا تھا کہ یہ بزرگوں کی شرطیات ہیں, تو وہ یہ چیز کر سکتے ہیں لیکن تم جو دجالی ہو تم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اس پہ میں کچھ جاننا یہ کس چاہتا کا تھا کلپ ہے ذرا مجھے آپ کوئی؟ یہ مرزا انجینئر کا. جی ٹھیک ہو گیا. انجینئر مرزا کا کلپ آپ نے کہاں پہ سنا؟ یوٹیوب پہ. یوٹیوب پہ. اس نے اپنے منہ سے یہ کہا جی پیر مہر علی شاہ سے جب مناظرہ ہوا تھا مرزا قادیانی کا, ہاں مرزا قادیانی, تو پھر پیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ شتحیات ہیں. شرطیات ہیں, یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہیں. اچھا چلے کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے صحیح. وہ کلپ کتنی دیر کا تھا؟ وہ کوشچن آنسر تھا تقریباً کوئی 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹے کا وہ کلپ تو نہ ہوا, پھر پوری ویڈیو ہوئی نا. جی جی نہیں وہ اسی بات پہ پوری ویڈیو نہیں, ویسے میں بتا رہا ہوں. اچھا تو وہ ذرا مجھے بتائیے گا کون سی ویڈیو ہے, میں خود دیکھنا چاہتا ہوں. وہ تو ابھی ڈھونڈ کر ہی بتانی پڑے گی. اب وہ نا آپ جائیے, واپس جائیے, جی ڈھونڈ کے لے کے ہیں. یہ تو بڑی زبردست آپ نے ویڈیو بتائی ہے. اچھا نہیں چلیں اس پہ مجھے کو کچھ رہنمائی فرما دیں. وہ رہنمائی تو اس وقت کریں گے جب آپ ہماری رہنمائی کریں گے. سوال یہ بھی سوال ہی ہے نا, آپ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. سوال آپ کا بوگس ہے, یعنی بغیر دلیل کے جی جی سوال کریں, لیکن اس کی کوئی لاجک ہونی چاہیے. دیکھیں جیسے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ حرامزادے ہیں, جی معذرت کے ساتھ میں مطلب مثال مجھے ایک دم ذہن میں آ گئی ہے, تو ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں حرامزادے ہیں. جب تک میں دلیل نہیں دوں گا تو یہ گالی سمجھی جائے گی کہ نہیں؟ جی جی تو جب دلیل دے دوں گا پھر وہ کنفرم ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. ہاں تو دلیل دینی چاہیے. جب آپ بات کر رہے ہیں ایک تو اس کی دلیل دیں. مطلب کہ جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں جی, وہ جب دلیل لے کے آئیں گے نا تو پھر, کیونکہ یہ ویڈیو بڑی کمال کی ہے. یہ تو مجھے چاہیے کہ میں کب کی تلاش کر رہا ہوں کہ مرزا جونیئر جیلمی نے کہاں پہ کہا ہے, کیونکہ مرزا قادیانی کا مناظرہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب سے ہوا ہی نہیں. وہ ٹاکرا تو ہوا ہی نہیں, وہ تو بھاگ گیا تھا, وہ تو آیا ہی نہیں تھا. اچھا ہاں وہ ویڈیو چاہیے, بڑی ویڈیو قیمتی ہے, یقین مانیے. ٹھیک ہے. ہاں وہ تو مناظرہ ہوتا تو پھر وہ بولتے شتحیات, وہ تو ایک بعد کی بات ہے نا. پہلے تو یہ وہ ویڈیو پہلے چاہیے. پھر ویڈیو جب آئے گی تو پھر اس کی خانہ تلاشی ہم لیں گے اور جامع تلاشی لیں گے کہ یہ چیز کہاں سے چلی, کیوں چلی. اصل میں مرزا جونیئر جیلمی جو ہے نا یہ خود قادیانی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ویڈیو ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ قادیانی ہے. وہ ویڈیو لے کے ہیں. ہاں جزاک اللہ. جی بڑی مہربانی. میں کب تک آ جائیں گے آپ؟ میں ابھی تو میں کیا بتاؤں, آپ نے کبھی جواب ہی نہیں دیا. نہیں وہ بتا دینا ویڈیو کب تک لے کے آ جائیں گے, کہ ٹائم قیامت تک ہے. چلے نہیں بتا تو دینا کہ ٹائم قیامت تک انتظار کرنا ہے بیٹھ کے. نہیں ابھی ہم ابھی آپ کو بتا دیں گے. ابھی کتنی دیر؟ قیامت تک؟ ابھی یہاں پہ ویڈیو میں کہاں پہ شیئر کروں؟ ابھی وہ قیامت بھی تو آنے والی ہے نا, بس ابھی بس آئی. کانٹیکٹ نمبر بتا دیں, میں ادھر ویڈیو کا لنک. نہیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی کتنی دیر تک؟ قیامت بھی تو ابھی آنے والی ہے, ابھی سے کیا سمجھے ہم؟ آج کے دن میں, آج کے دن میں. تے اتنے ہوں پھر ویلے ہو کے بیٹھے رہیے رات تک, تہاڈا انتظار کرتے رہیے. ماشاءاللہ ٹائم کوئی 10 ہو گئے تو پھر نا
टाइम मुझे आप बता दें कि इतनी देर में आपको चाहिए, 5 मिनट में चाहिए, 10 अच्छा मिनट में टाइम चाहिए? रात तक का है हैं? चलें ठीक है। न कोई इधर ही हम शेयर करेंगे, टाइम रात कोई तक है। कोई अच्छा रात कंटेंट। पाकिस्तान ਦੇ 12 ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 12? मैं पाकिस्तान में। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਜੇ 1:26 PM ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1:30। चलें सही है। चलो जी टाइम रात के 12 बजे तक का है, ठीक है जी? चलें तब तक आप फिर जवाब भी देख लीजिएगा। जी हाँ, जी वीडियो ठीक हो आपको गया ना, पहले वीडियो लाएंगे ना तो फिर ओए होए होए मजेदार जवाब भी मिलेगा। ठीक है। ये हो गया ठीक। ठीक है। चलें चलो यार गुफ्तगू जारी करो भाई। टाइम देने का मुफ्ती साहब। जी बेहतर हो गया जी, टाइम 12 बजे तक का देता है, ज्यादा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है शाह जी? सेहत भी ठीक है? ये अल्लाह का शुक्र। माशा यार एक और थले आया सी वो मेरे से जूनियर जेलमी ਦਾ स्टूडेंट, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਜੇਕਰ ਆਇਆ ਤੇ। जी मैं देखता हूँ। शाह जी ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵੋ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1-2 ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। हाँ भाई उस्ताद मोहतरम उत्थे, हाँ जी उस्ताद मोहतरम उत्थे दूसरी बरौड़ ते रौला पै गया ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਾਫਜ਼ੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਾਜ਼ਮੀ, ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਰਾਫਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਪੈਡਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਡ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਏ ਸਾਇਜ਼? ਇਹ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ। ਓਹੋ ਹੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਰੇਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2 ਰੁਮਾਲ ਨਾ ਦੇਈਂ, 4 ਦੇਈਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਕਜ਼ਾਬੀ ਹੋ, ਫਿਲਮੀ ਕਜ਼ਾਬੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕੋਈ ਆਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਆਓ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਬਈ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਆਓ ਬਈ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰਾਫਜ਼ੀਆਂ ਕੋ, ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ਈਓ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਲਵੋ, ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਮੋਹਤਰਮ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਔਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਸਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਹਲਕ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਫਜ਼ੀ। ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਡੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਸ ਆਏ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਸ ਆਏ ਜ਼ਰਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਯਾਰ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਲੈ ਲਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शाह जी और तुसा उस दिन हवाला दिता ही, हवाला ते मैं लभ लिया ही कि नाम मलफूजात जिल्द 5 पंजम सफ़ा 97 कुत्ती दे बच्चे आला जी जी ओदे ते जे तुसी थोड़ी जी रोशनी पा दवो ताकि मेरे इलम च इजाफा होइए ते बहुत मेहरबानी होएगी उस्ताद मोहतरम। जी ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जज़ाक अल्लाह। ਅੱਛਾ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣੋ ਨੇ, ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣੋ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। जी जी हाँ जी है ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ बेशक ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਫਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਕਿਆ, जी जी हाँ जी ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਤੂਰੇ ਬਣੋ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ जी ਐ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤੋਂ ਕੋ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲेंगे। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। बेशक बेशक ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਮਰਦਾਈਓ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸੂਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਈ ਦਲੀਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੁਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। बेहतरीन हो गया सब बेहतरीन। फतावा शार बुखारी। शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਜਨਾ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਬੱਲੇ ਔਰ ਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨੋਸ਼ੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਖੋਚਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇਜ਼ ਵਾਹ ਹੈ। शाह साहब रियल मशूक है या जिली बरूजी है? ਨਜ਼ਲੀ ਬਰੋਦੀ ਭਾਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿੱਤਰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਠੀਕ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਹਕ ਅਮਜਦੀ रहमतुल्लाहि ताला अलैह
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਾਵਾ ਇੱਕ ਫਤਾਵਾ ਸ਼ਾਰੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਜਿਲਦ ਦੋਮ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ भाई, जिल्द दोम है, ठीक है। और फिर तो सह फतावा शारे बुखारी नेट के उत्ते ही मौजूद है, जिल्द दोम। और एदा सफा जड़ा है ना जनाब, सफा जड़ा वे सफा नंबर 153, 54, 55, 56, 57। अच्छा, ते हैरत एक तुहानूं होएगी, कुछ हवाले कल भी मैं दिते सन, ते कुछ एक होर हवाले दा इजाफा कर लवो कि मिर्जा जूनियर जेलमी दी जी वीडियो आई सी ना, सब तो पहली चिश्ती रसूला वाली, ओदा सन नोट कर लो, ओदा सन नोट कर लो कि किहड़े सन दे विच ओदी वीडियो आई सी। ते इस किताब दा इशाते अव्वल दा सन नोट कर लो, तुहानूं आपे ही दुध दा पानी हो जाएगा कि इहदे जम्मन तो भी पहले ना, उदों लंगोटियां दी मां इहनूं बंदी हुंदी सी, ते उदों मुफ्ती मोहम्मद शरीफ हक अमजदी साहब ओहदा जवाब दे चुके सन ते ठोक वजा के। ते कल भी मैं दस्सिया सी कि यह वाबियां दा इतराज सी, जिहड़ा वाबियां ने चुकिया सी, ओह अल बरेलविया जिहड़ी किताब है, ठीक है जी, ओहदे विच तुहानूं मिल जाएगा, इंसान लई ज़हीर दी। इस तो इलावा और भी दीगर कई किताबों के विच मिर्जा जूनियर जेलमी के जम्मन तो पहले इतराजात हो चुके सन, ते इहदे जम्मन तो ही पहले साडे उलमा ने इहदे जवाब दे दिते हुए ने। इहदी अपनी तो कोई चीज़ है कोई नहीं है, इहदा कोई कमाल होए तो दसो ना कि भाई तेरा कोई बड़ा कमाल, ते जिवें तेरे प्योवां ने नहीं मन्निया ते उवें तू भी नहीं मनदा पिया। साडे उलमा ने तो जवाब दिते, तेरे प्यो उदों भी नहीं सन मन्ने ते तेरे प्यो तू भी नहीं हुण मन्नना, ते ना ही तेरे बच्चियां ने मनना है। चलो यार गल करो भाई, कोई आया तो फिर मैं माइक ओपन कर लांगा। हाँ जी अदील भाई मौजूद हो? जी 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 सर। हाँ जी अदील भाई, कल का आपका पॉइंट मुझे बड़ा दिल को लगा था कि जेलमी की क्या, अभी उस्ताद मोहतरम ने वही बात की कि इसका खुद का क्या किरदार है, और आपने भी कल वही बात की कि इसने कौन सी जनाब वो तर्जमा कर दिए हैं, कौन सी वो नई चीज़ें ला के रख दी हैं। ये आवाज़ कम है आपकी, जो है ना, जुमा 8 दिन इनकी जेलमी साहब की जनाब वो पैदाइश हुई है, लंगोटे वो भी बांध रहा था, तो ये जो सवाल उठा रहा है तब से उससे पहले जवाब दे दिए गए थे। इसकी खुद की क्या है, सिर्फ खराफात और बदतमीजियाँ सिखाने के अलावा जी ना इसका, इसके बहुत सारे जी फलां दिसों में आ गया, मिर्ज़े कादियानी की तरह ये जी वो जी फलां दिसों में आ गया, ये 14वीं सदी के सर पे वो आएगा, ये इस तरह के ये रेफरेंस देता है जी। और हमने कल भी ये बात की थी कि इस हाँ जी जी इस मामले में ना मेरी ये भगोड़ा है वक्त से बात हुई थी। मैंने कहा जी आपके जो उस्ताद मोहतरम है वो पहले तो ये इतराज करते रहे हैं जी कि तर्जमा लेट हुआ, और मैंने कहा जब कर दिया तो अब आपका ये इतराज है कि जी तर्जमा ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा पहले तो ये बताएं कि बरसगीर में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तर्जमा किया, और वो कहता है जी कि आला हजरत ने ही किया है। लेकिन मैं क्या लेकिन मेकिन शेकिन कुछ नहीं, जब उन्होंने जो पहली शख्सियत हैं जो बरसगीर में जिन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया, तो भाई फिर आप इसी चीज पे आपकी जुबानें खामोश हो जानी चाहिए ना। तो इसी चीज पे आपको नाफरमानी का जो आप जमरे में आ जाते हो ना, आप एक औलिया अल्लाह के ऊपर इतनी मतलब जुबान दराजी कर रहे हो,
आपका ईमान खतरे में है। मैंने बड़े प्यार से उसको समझाया, लेकिन बात वही है कि इन्हें बस वो सूरह बकरा की आयत नंबर जो 7 है ना, कि इनके दिमाग सब कुछ बंद हो गया ना, इनको बस कीड़े ही नजर आते हैं बस। तो फिर मैंने इसे बोला है, मैंने कहा यार चलो जी हमारा तर्जमा ठीक नहीं हुआ, हमें ठीक तर्जमा दो। ठीक तर्जमा मतलब तुमने इतना बड़ा क्लेम कर दिया कि जी तर्जमा ठीक नहीं हुआ, ये तो अब आप पे जिम्मेदारी होगी कि आप उम्मत तक हक बात पहुंचाओ और उम्मत को जोन साहब आप जोन सा सही तर्जमा दो। तो उधर से भी राय फरार जिसा बड़ा जड़ा मिर्जा है वो भागता रहा, इसी तरह ये भी भागता रहा। भाई दो तर्जमा हमें दो, जरा हम भी पढ़े केड़ा हक बात है, कौन सी हक बात है जो नहीं हमारे बुजुर्गों ने पहुंचाई और आपको इस्लाम अब समझ में आया तो पहुंचाओ फिर। ये तो अब आपके कांधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। लेकिन बात वही है, खोखले हैं जी ना। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ना मैं भाभी ना मैं भाभी है भाभी ये है। हाँ जी, अभी जो इसकी जो वीडियो आई है उसके अंदर वो कबूल कर रहा है, कहता है हाँ मैंने ये भाभीियों से लिए हैं ये अकायद और नजरियात। और जब मैंने इतराज करना होता है भाभीियों के ऊपर तो बरेलवियों की हाँ वो चलो लफ्ज गलत निकलने लगा सी ते उधर हाँ जी ते उधर उन्होंने दी किताबां चों मैं ले लेना वा इतराज। जो मैं करना हुंदा है शियां दे उत्ते चढ़ाई करनी हुंदी है ते उदों मैं दियोबंदियां नाल राबता कर लेना वा, ते जदों मैं दियोबंदियां दे खिलाफ कुछ करना हुंदा है उदों शियां नाल राबता कर लेना वा। इंज करके वो आंदा मैं सारे इतराजात उत्थों ही लेने ना, इन्हां मौलवियां कोल ही ले ले। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी वही ना शाहजी, हमारे बुजुर्गों ने हर तफसीरें बांधी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमे किए हैं, तफसीरें बांधी हैं फारसी। ये तो इसे तो इंग्लिश भी नहीं आती होनी, हमारे उलमा कराम तो फारसी में इतनी महारत रखते हैं। कुछ भी नहीं आंदा, इनू की आंदा है इंग्लिश जी जी ते फारसी ते उर्दू नहीं सू सही पढ़ सकदा, इंग्लिश ते फारसी दियां गल्लां करदे हो पे अरबी दियां। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਕਿਹੜੇ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬੀਵੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਸੀ 4.5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕਾਪੀ ਪਈ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। 26 ਸਵਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਏ 4.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ 26 ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੰਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਫਾ ਬਹਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਫਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਹੈ जी जी। शाह जी पीछे ना ये बड़ा मेरा इसके साथ सीन बना रहा है ना, ये जो अपना भगोड़ा वक्त है ना, इससे पहले ना मैं हुसैनी साहब की ब्रॉड पे था, तो एक मरज़ई होगा आपको पता है, बहुत बड़ा गुस्ताख है, उसका क्या नाम है यार, अब पता नहीं, अवैस की इदरीस इस तरह का नाम है उसका। उससे मैं डिबेट कर रहा तो नीचे से ना एक उम्र यार इस तरह का कोई इन्हीं का यानी कि इन्हीं की ग्रुप का है, साथ बैठाया हुआ था उसको। वो आगे से कहता जी साड़ी नजर च बरेलवी, उससे अच्छी भली मेरी डिबेट हो रही है, कहता जी साड़ी नजर दे विच बरेलवी ते कादियानी इको ही है। मेरा मीटर नहीं घूम गया। मैं कहा यार अगर सानू यही मैंने मरज़ई मार रहे हैं, यही मैंने छोटे मरज़ई मार रहे हैं, तो फिर साडे लिए ते दोनों इको ही लाइन च है ना। भाई वो तेरा वो एक तरफ हमें कह रहे होते हैं जी इत्तेहाद करो कादियानी के खिलाफ, इकट्ठे हो गए माज खोलो तो ये वो,
जब हम उससे डिबेट कर रहे हैं तो जनाबे वालों कह रहे हैं जी साड़ी नजर जिते बरेलवी तो कादियानी एक ही है। तो ये कौन सा फिर एहतियात भाई, जब आप खुद, और 2 दफा शादी हुआ है, उससे पहले भी फेवरेट 49 की ब्रॉड पे बैठा था और मेरी उससे अच्छी वाली डिबेट हो रही थी, और ये अचानक ही आया है और ये कहता है उसने भी यही बात कर दी ना, वो आला हज़रत के ऊपर जुमले कस दिए। और शाह जी यकीन माने कि मेरा सामने होता ना तो फिर समझने वाले समझ आए कि क्या करना था मैंने उसे कहा तू यहाँ से निकल और मेरी ब्रॉड पे आ। हालांकि मैंने फिर भी वहां कोई से बदतमीजी नहीं की। मैं कहा यार ये बातें अगर करनी है ना तो फिर या तू अपनी ब्रॉड पे चल या फिर हम, ये कानून कायदा कुलिया मैंने इन्हीं से सीखा है। फिर शाह जी हुआ इसी तरह ही है, मैं मौके की तलाश में था, ये कहीं पीछे गालियां शालियां देते रहे मरजइयों को, वो जो गुस्ताखियों का सीन इनका चल रहा था अम्मा आयशा भी और वगैरह वगैरह ना, और ये उधर कहीं भगोड़ा वक्त गया, उन्हें कहते जी आप आए और हम जज्जा से बात नहीं करेंगे, फलां से नहीं करेंगे। ये अभी निकला ही, मैंने रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने मुझे उठा लिया। मैंने कहा यार ये अभी कल तो आप लोगों को गालियां दे रहा था, अभी आपकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारी ब्रॉड पे आओ। इनको इतनी मिलते शादी लगी है ना कि जी वहां पे जाके ये काम क्यों किया, ठीक है, कहता जी वहां पे जाके काम नहीं करना था, अगर ये को काम करना था तो ये इधर आके करना। दिल भाई के साथ कथा कलामी, ये जो नहीं यार इस बंदे को ब्लॉक करो, ये कट्टर राफजी है। एक मिनट फहीम भाई, अभी मैं हूँ तो किसी को कॉल पे उठाए या गिराए नहीं, अभी मैं मौजूद हूँ, ठीक है, वो फहीम भाई ने उठाया। ठीक हो गया, मैंने नहीं गिराया, वो खुद ही भाग गया। नहीं मैंने भगाया। नहीं ये नाउज़ बिल्लाह इसकी मैंने कल ब्रॉड देखी और मैंने इसको अपनी आईडी से ब्लॉक किया। ये अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, मैं यहाँ पे बयान करते हुए यकीन मानो मेरा जिस्म कांप रहा है। इसने अम्मा आयशा की इतनी बदतरीन गुस्ताखियाँ ये कर रहा था, ऐसी गलीज़ किस्म की तस्वीर लगा के इसको ब्लॉक कर दिया। हाँ उस्ताद मोहतरम, एक मैं बात करना चाहूँगा। अभी आपने बात की ना कि जब कादियानी कहते हैं कि जनाब आगे पढ़ो सफ़े पढ़ो, तो कादियानियों ने तो ऑफिशियली अपनी किताबें लिख के वेबसाइट पे लगा दी हैं, और जो हमारे पास आपके पास सारी मौजूद हैं वो उसमें वो रद्द-बदल कर नहीं सकते। अब जेल में जो है ना वो उससे आला नस्ल का कुत्ता एक है कादियानियों से, वो इस हिसाब से कि इसकी तो वीडियोज़ हैं, ये अपनी वीडियो एडिट कर देता है जहाँ पे इसने खराफात बकी होती हैं। तो ये इस बारे में शाह साहब ज़रा क्या ख्याल है आपके बारे में, इसको मतलब ये जो अगर जैसे अभी इसकी वीडियो सारी एडिट हो जाती हैं, रजू कर लिया जी इसने, उसका क्या किया जाए? और इनका आपने जो सही आपने पेशीनगोई की है, रजू कौन सी वीडियो है उसकी रजू वाली? मुन्नू तो अज तक नहीं लभी कोई रजू वाली वीडियो दी, कोई रजू शजू कोई जनाब। हाँ जी नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत गल ही गलत है। 16 ने गलत है कि इन्हें रजू किसी चीज तो कीता है, कोई है रजू ते कोई भी नहीं। वो जेड़ा मरज़ैया आके तुहानू कहंदा है ना रजू दा, ओदे कोल वीडियो लिया करो, उनको लिया भाई वीडियो लिया। अगली गल बाद चो करांगे, पहले तो वीडियो विखा ना सानू कित्थे उन्हें रजू कीते। अच्छा ये मैंने एक ना लगाई है सामने, ये जो नीचे है ना ये बाबा कुकी, इससे भी बहुत जो सा ना गुस्ताखी की आला हज़रत की शान में ना, मैंने उस वक्त नोट कर लिया। ये जिधर नजर आए इसको पकड़ लो। एक और मैं बंदा दिखाता हूँ, बहुत बड़ा बदतमीज़ और बद इखलाक बंदा है ये जनाब सलीम मीर के मुंह में मुंह डाल के बैठता है जाके वहाँ पे, ठीक है। सलीम मीर का सही ये साथ मिल के मुसलमानों को गालियाँ देता है ये कुकी, ये उमर इज़म इसकी आईडी, और बड़े तरले करता है जनाब आके वहाँ पे ब्रॉड पे भी, जी हम कुछ नहीं कहते, हमें मरज़इयों से मलाया जा रहा है। तुम हो मरज़ई, तुम लोग जेल में के मानने वाले है ही मरज़ई, इनके कायद वो हैं सारे। 60 साल का दावा ये कहता है कि मिनी खुदा बना देंगे, तो मिर्जा कादियानी क्या करता था, यही करता था वो। ये जट नाम की आईडी कौन बैठ? हेलो अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, मैं हूँ काशिफ काशी, नाम चेंज किया हुआ, कैसे हैं, क्या हाल है? ये अल्लाह का शुक्र है। काशिफ कौन? काशिफ काशी काशी शाह साहब काशी। अच्छा काशी भाई, अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा यूसी साहब ये है ने अल्लाह ताला बैठे है जी बुलाना ते जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा एहसान, अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, तुहाड़ियां दुआवां ने सर।
ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੋਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। जी शाह जी, बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा ये जोन सा है ना, ये जो अभी मेरे पे इल्जाम लग रहे हैं ना जी, कि मतलब आमिर नजीर साहब की तरफ से भी इल्जाम लगता है जी तू इंज नहीं करना सी ते फला फलू। ये कायदा कुलिया इन्होंने खुद सेट किया है। पहले इन्होंने हमारे साथ मर्जियों के ब्राड पे जाके इन्होंने खुद ये कायदा कुलिया तोड़ा है। डेफिनेटली जब वो नहीं करेंगे, मैं तो बड़ा अलन ऐलान कहता हूँ कि मेरा तो सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल साइंस है और सियासत फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है, अल्लाह का शुक्र है ना। फिर यही को कायदा कुलिया मैंने जब मैंने, हालांकि वहां मैंने कोई बात नहीं की, ये उनकी मिन्नतें कर रहे थे ये खलीफा वक्त जाके ना जी देखें जी जज्जा और फलां और फलूं, तो आप ऐसा करें कि आप आए हमारी ब्रॉड पे फेवर, वो मियाँ साहब फेवर 49 का ना, आप आए जरा 1 घंटे के लिए, हम 1.5 घंटे के लिए ब्रॉड ऑन करेंगे तो कोई मुज़ाकरात करते हैं, तो ये बीच बजाज का ना रास्ता निकालते हैं ना। ये उसने वहां जाके ये बात की। मैं ऊपर गया, मुझे शुक्र है ले लेते हैं ये मर्ज़ई वगैरह ना। तो मैंने कहा जी ये आपकी मिन्नतें कर रहा था, अभी कल तो आपको गालियां दे रहे थे ये, और अभी आपकी मिन्नतें कर रहा है कि आप हमारी ब्रॉड पे आओ। लो जी, और मर्ज़ई ने कहा भी है कि यार नहीं हमारी मिन्नतें नहीं कर रहा था, वो वैसी कोई और बात चल रही थी। मैं कहा अच्छा मुझे फील हुआ शायद आपकी मिन्नतें कर रहे हैं। इन्होंने इतना इशू बनाया हो जी तू मुसलमान नू जाके उथे बेइज्जत करा दिता, साडे असी ओदे को माफी मंगवा मंगन ही लगा सी ते इंज ते उंज। और मैं कहो भाई वो आला हज़रत दे जुमले कसदा है, उथे उधर मेरा भी कोई पीर भाई बैठा हुआ है ना, मुझे उसका नाम नहीं आता। वो बाद में कहता जी तुसा गलत कीता मसेर जी, वो पिंडी का। मैं कहता तुझे शर्म नहीं आती? हमारे पीर जो से नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा हुआ है कि आला हज़रत जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये सच्चे आशिक रसूल है। मैं कहा जब पीर साहब ने हमें गवाही दे दी, तू मैं कहा इधर बेशर्मों की तरह यहाँ बैठा हुआ है उनके साथ जो सा बाहों में बाएं में लाके, तुझे शर्म नहीं आती? तू पीर साहब की नाफरमानी कर रहा है उनके हुक्म की, वो जुमले कस रहा है और तू बेशर्मों की तरह बैठा हुआ है इनके साथ। तो ये शाहजी इन्होंने ही कायदे कुलिये, यानी कि सारे सुनने वाले सुन ले, इन्होंने खुद ही ये कायदे कुलिये सेट किए हैं। ये तंग करते हैं हम मर्ज़इयों की ब्रॉड पे जाके, जब हम उनसे बहस कर रहे होते हैं या मतलब हुसैनी साहब की ब्रॉड पे जाके हम उनसे मतलब कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ये बीच में आके उंगल कर देते हैं। फिर अभी वो रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया, हो जी इत्तेहाद तोड़ दिया तुमने, तो ऐसे कर दिया। भाई हमने कोई इत्तेहाद नहीं तोड़ा, ये पहल आप लोगों की तरफ से हुई है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हमारे पास तो इल्म का खजाना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही उलमा कराम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, साढ़े लो भावें सारी दुनिया एक साइड पे हो जाए, हमें अल्लाह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पक पूरा भरोसा है कि ये वही जमात है जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो जन्नती होगी इंशाल्लाह। हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो सारों की इज्जत करते हैं, हम अहले बैत की भी इज्जत करते हैं, हम सहाबा इकराम की भी इज्जत करते हैं, औलिया अल्लाह से भी हम ही मोहब्बत करते हैं। और गुस्ताख तो तुम सारे हो, और आज आगे जनाबे वाला हमें तुम बता रहे हो कि जी तुसी इंज कर देता तो तुसी उनकी इधर आओ, फिर मैदान में सामने बैठो जी, कोई बात करना चाहिए। जरा मॉडरेटर बनाना मुझे गेस्ट ऑप्शन के साथ यार। जी वो आपकी मैं बात कंप्लीट करना चाहता हूँ कि आला हजरत को समझने के लिए माँ का नेक और बाप का एक होना लाजमी है, मस्ट है, ये शर्त है, तब जाके आला हजरत समझ आएगा कि भाई वो कौन सी हस्ती हैं। ऐसा ही है। और पहले पढ़ो तो सही, तुम्हें तो उनकी किताबें पढ़ने में तुम्हारे बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाएंगी। कमोपेश 1000 के करीब मैं एक ज्यादा ही होंगी इंशाल्लाह, 1000 के करीब आला हज़रत ने किताबें लिखी हैं। तुम्हारे बच्चे मुक जाएंगे उनकी किताबें सिर्फ पढ़ते और समझते, तुम तो बड़ी दूर की शाया हो। अच्छा यहाँ पे ना एक मैं शामिल करता हूँ शतहियात का, अभी गुफ्तगू हो रही थी तो शतहियात के ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल के फिर मैं माइक म्यूट करता हूँ। शतहियात ये शतहुन की जमा है, शता की जमा शतहियात। शता किसको कहते हैं ये समझ लीजिए, ये असल में कहते हैं लग़ज़श को।
یعنی خلاف حقیقت کام کو شطح کہتے ہیں. جس کا ظاہر کوئی اور ہو باطن کوئی اور ہو اس کو شطح کہتے ہیں. جس کی شریعت گرفت کرے اس کو شطح کہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ وہ حدیث تو طویل ہے، مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ کا صحرا کے اندر مال گم ہو گیا، تو اس کو جب ملا اونٹوں کا لدا ہوا مال، تو خوشی کے عالم کے اندر وہ کہنے لگا یا اللہ انا ربو کا و انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی بظاہر ہے یہ کلمہ کفر ہے اور شرک ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس وقت جب کوئی گنہگار اس سے توبہ کرتا ہے. تو یہ شطحیات ہیں، یعنی جس کا ظاہر حکم کوئی اور ہو باطن کوئی اور ہو. یہ تو اب کہیں آ کے لنگوٹا کسی قادیانی دی پیدائش ہے یہ دادے تے پردادے تے لکڑ دادے تے انہوں نے بھی یہ چیزاں نہیں پڑھیاں ہونیاں. جا کے کتاب دیکھو، کتاب کا نام ہے کتاب اللمہ فی التصوف، ابو نصر سراج کی کتاب ہے، اور یہ بزرگ 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے اسی شطحیات کے اوپر اتنی زبردست قسم کی گفتگو کی ہے. تھوڑا سا اقتباس میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں صوفی کے قلب پر حالت، اچھا اس کے ترجمہ آ چکے بھائی، نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، ویسے عربی کے اندر ہے. فرماتے ہیں صوفی کے قلب پر حالت وجد میں جو انوار و تجلیات الہی کا ورود ہوتا ہے، ان کے غلبہ کی کیفیت کو وہ ایسی غیر معروف زبان میں ادا کرتا ہے جو سننے والوں کے فہم میں نہیں آ سکتے، البتہ جو اس کے اہل ہوتے ہیں وہ اسے سمجھ جاتے ہیں. مگر جو شخص سلوک اور معرفت اور اس کے واردات کی حقیقت سے بے خبر ہو، اس کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ان کلمات پر گفتگو نہ کرے اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے. اب بات یہ ہے کہ 4 صدی ہجری کے اندر ایک بابا اٹھ کے یہ بات لکھ رہے ہیں، اور یہ کتاب بڑی مشہور ہے. یہ پچھلے سمجھ لو کہ 10 صدیوں کے اندر، یہ ہر صدی کے اندر یہ کتاب بڑی مشہور رہی ہے تصوف کے اندر، اور اصطلاحات تصوف کے اندر بڑی مارکت الرا کتاب ہے. کسی ایک وہابی نے بھی کوئی اس کا رد کیا ہو ہے؟ وہابیوں کی تو اپنی پیدائش جو ہے نا وہ 12ویں صدی ہجری ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے اس سے پہلے تو دنیا کے اندر، دنیا بھر کے اندر کوئی وہابیوں ہی نہیں تھا، کوئی غیر مقلد نہیں تھا. پتر چیلنج منہ منگے چیلنج کرنا، میں جاؤ ایویں میں چھڑدا نہیں پیا. کوئی ایک بندہ ثابت کر دیو کہ غیر مقلد سی، منہ منگیا انعام میرے کو لے لیا جی. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی وہ بھی ادھی عمر تک وہ مقلد رہے ہیں، حنبلی سی، جدوں وہ رفع دین کردا ہوندا سی، کیونکہ امام حنبل دے نزدیک رفع دین جائز ہے. بعد دے وچ انہیں اپنا انہیں کہ نہ میں بھابی میں ہوں مسلم علمی کتابی، انہیں جھنڈا گڑ دیتا. پہلا دنیا دا غیر مقلد ہو سی. تو پوری دنیا کے اندر بھائی پورے ملک کوئی حنفیوں کی تعداد ہر صدی کے اندر زیادہ رہی ہے. کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، لیکن حنفیوں کی تعداد زیادہ رہی ہے ہر دور کے اندر. ابھی بھی آج کے دور کے اندر بھی حنفیوں کی تعداد زیادہ ہے. اچھا، تو کسی ایک نے بھائی اس کا رد کیا ہو،
लियाओ रद्द। अगर ये बात गलत थी, ये बाबों की बात है, ये कोई कुफर है, कोई शिरक है, तो इस किताब का कोई रद्द आया हो। मैं तुम्हें पुत्र मेरे ओए मरदैया, मेरे को ना 500 तो ज्यादा तसव्वुफ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਲਿਸਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਛਾਪੋ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਬੱਕ 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 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖੇਡੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਖੇਡਣੇ ਆ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੱਤਰ ਬੋਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਸ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਂਝ ਦੀ ਚਪੇੜ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਈ। जी जी जी, ये नए हमारे हैं जुहेब आजम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह पाक का करम है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, वियतनाम से। जी जी। तो इधर मेरे साथ ना मैं एक दोस्त काम करता था, तकरीबन कोई 3 साल मेरे साथ रहा है, लेकिन उसने ना फील नहीं होने दिया कि वो कादियानी है। वो मेरे पता नहीं कादियानी था, उसका जो है ना ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं था। तो मुफ्ती साहब ज़रा ये हमें बता दें कि किस तरह पता चलेगा कि यार ये बंदा कादियानी है। 3 साल बंदा हमारे साथ रहा है जी, वो एक दूसरे दोस्त के रेफरेंस से पता चला है ना, बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो मतलब कादियानी है। तो कोई ऐसा हमें थोड़ा वो आइडिया हो जाए कि यार बंदे से पता चल जाए कि ये मतलब कादियानी है या वो मिर्जाई है। यार मैं ना इस टाइम मसरूफ जे ते तुसी ना मैनू बार-बार करो ते आपे ही कोई सवाल जवाब कर लो मुख्तसर। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ की पहचान नेट ਤੇ सर्च कर लो, मिल जाएगी। मेरी ही वीडियो है, सब तो पहले मैं ही YouTube ਤੇ अपलोड ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਦਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੰਦਾ। बस यही पहचान है सब तो बड़ी, मतलब बेहयाई वाली बातें करे तो हाँ, गाली गलोच करेगा, शराब नोशियां करेगा, जानी होएगा, इंज दे पुठे पुठे काम करेगा ना, उस समझ लो पक्का कादियानी। चल सही है जी, बस यही बात मैंने पूछनी थी। मैं तो आज भी उनके एक पेज में चला गया था, कादियानियों को देखा था, को नीचे करते करते फिर आपका आया, मैंने कहा चले पूछ लेता हूँ। वो तो बहन जो तो अपने फार्मूले सुना रहे हैं जी, ये है तो वो है, तो अल्लाह माफ़ करे जी। बस ठीक है, बेशक मुझे अभी नीचे ले आए, मैं अभी आपकी वो सुन रहा हूँ। जी जी, रुकें जरा, रुकें। क्या 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 फार्मूले जरा एक्सप्लेन करें जरा हमें, वो बताएं अभी जरा। आपसे पहले ना मैं एक कादियानियों के ये टिकटॉक पे ना कादियानियों के ग्रुप में लगा था, तो मैंने उनको ना आयत पढ़ के सुनाई है। वो जो आयत है, मा काना मोहम्मद नबा हब मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। मैंने कहा यार ये जब कुरान पाक ने कह दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, तो अब आप इसमें और क्या। तो वो ऐसे ही अपने से जो सुना रहे थे जी कि ख़त्म का मतलब ये नहीं होता और पता नहीं इसका ये होता है वो होता है, वो अपनी तरफ से ना। फिर मैंने वो स्किप कर दिया, मैंने कहा छोड़ो भाई, अपनी आपसे बाद में बहस करते हैं इस चीज़ के बारे में, हमारा तो कोई इतना वो है नहीं। सही सही सही, चल बस यही हुई थी गुफ्तगू, बस यही तकरीबन हुई थी। फिर मेरा जो है ना एक करीब का दोस्त है, तकरीबन 3 साल रहा है हमारे साथ ही, मतलब एक कंपनी में हम काम करते हैं। तो वो बाद में पता चला कि यार वो कादियानी है, तो बड़ा मैं दुख हुआ। हमने कहा यार इसको किसी तरह मुसलमान कर दें हम, खैर वो नहीं, वो तो किसी और ही चक्कर में लग गया, बाकी कोई इतनी खास नहीं हुई। सही सही। नहीं, अभी मुफ्ती साहब से पूछा, मैंने कहा यार बंदे को पता तो चल जाए, क्योंकि उसने कभी भी इस चीज़ पे जिक्र नहीं किया, उसने अपने आप को मुसलमान ही शो किया है। असल में ये जो है ना कादियानी कल्ट फितना, इसमें बेहयाई बड़ी कॉमन है ना, ये लोग बेहयाई को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, क्योंकि इनकी बुनियाद ही जो है ना वो बेहयाई पे खड़ी हुई है। सारी इनकी जितनी भी बिल्डिंग है ना, अगर आप जरा मिर्जा साहब की जो इनके जिनको ये मानते हैं उनकी आप लाइफ पढ़े ना,
तो बेहयाइयों से भरी हुई एक उनकी जिंदगी है। बेहया थे तो इतना बड़ा उन्होंने दावा कर जी दिया जी, ना। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा मिर्जा तो मैंने सुना है कि उसकी बाथरूम में मौत हुई थी। कहता नहीं अच्छा। ज़ुहैर साहब आप समझदार बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ज़ुहैर साहब आप इसको पढ़ें। सर मैंने इतनी बहस पे नहीं गया हूँ सर, मैंने कहा छोड़ो यार, एक चीज पे हमारा पॉसिबल ही नहीं है, हमने तो दादा सीरतुल परदादा मादी जिल्द अव्वल सफा 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। जी 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 जी, ये किताब है हाँ मिर्जा जी। साहब। दिल भाई मैं बता दूं ये भाई को, मुफ्ती साहब और ज़िया रसूल भाई दोनों ही मौजूद हैं। इन दोनों ने, इनका एक मुरब्बी है नासिर दाऊद भट्ट, 2020 में उसके मुंह से इकरार करवाया था कि मिर्ज़ा जी टट्टी खाने मरा था। आप ये कहते झूठ बोलते। अगर आपने वो वीडियो क्लिप देखना है ना तो मेरी प्रोफाइल पे पहला ही वीडियो क्लिप है, वो ये मैंने काट के लगाया हुआ है, जहाँ पे मुफ्ती साहब ने उसके नासिर भट्ट कादियानी मुरब्बी से मुंह से इकरार कराया था। नहीं, मैं अभी वैसे यूट्यूब पे जाके ना ये हाँ, वो वॉशरूम में मरा था बताया कि वो। वहाँ जी। से देखो, तो वो मैं जाऊंगा अभी। वैसे अब ये इसके फौरन बाद मैंने देखना है जाके, ताकि पता तो चल जाए यार कम से कम बंदा। अच्छा वैसे तो इनके साथ इतना तल्लुकात यार आप, मैं बता रहा हूँ, मैंने वो क्लिप लगाया मेरी प्रोफाइल पे, पहली वीडियो वही है जिसमें इनका कादियानियों का बंदा कह रहा है, खुद मुफ्ती साहब को जवाब दे रहा है कि हाँ जी वो वॉशरूम में मरा है, जहाँ पे वो पोटियाँ उल्टियाँ करता रहा है, वहीं पे मुरब्बी खुद इसका इकरार कर रहा है। आप देखे सही जाके वीडियो मेरे प्रोफाइल पे पहली। जी मैं देखता हूँ सर आपकी प्रोफाइल पे जाके। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह, बस यही बात मुझे नेक्स्ट पूछनी टाइम थी। एक सवाल लेते जाइएगा जब आप उनकी ब्रॉड पे जाए ना, नेक्स्ट टाइम जब भी जी 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 उनसे आप कहिएगा ये जो मरूमा मोहम्मदी बेगम है, इनका जरा वाकया बताएं, ये क्या सीन है। बस एक मिनट, मुझे दोबारा मरहुमा मोहम्मदी बेगम के बारे में मोहम्मदी बताएं। बेगम जी, मरहुमा मोहम्मदी बेगम के बारे में कि उनकी थोड़ी सी बताएं, बैकग्राउंड बताएं। बस ये सवाल उनके सामने रखिएगा। हाँ सर जी, साथ ऐसे ही में वो तूबा scroll करते करते आता तूबा है का भी ना। पूछ लेना आप साथ में। नहीं अली भाई, मेरे आप भाई। जरा एक क्वेश्चन आप उनसे पूछिएगा नहीं। कि मरहुमा मोहम्मदी बेगम का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। अगर वो ना बताए, नहीं बताएंगे तो फिर सीधा इधर ये सारे आप फॉलो कर लें, इन सारों को, इनमें से किसी से भी पूछ लीजिएगा, फिर आपको हम जवाब देंगे। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह यार, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं तो ऐसे ही शुगर ड्रामे में कोई बात नहीं भाई। करते करते ना तो उनके साथ हम चल रहा हूँ। मैं तो हम भी आप जैसे ही थे, बिल्कुल ऐसे नए नकोर, हमें भी कुछ पता नहीं था। हमने ब्रॉड सारी फॉलो की और ऐसे ऐसे हम इसकी रंगबाजियां बताते हैं ना मिर्जे की, तो आप हैरान होंगे इनके सारे झूठ और दजल सुन के मुसलमानों के साथ। जो इन्होंने मुसलमानों का लिबादा ओढ़ा हुआ ना, ये बहुत बड़े जिंदीक हैं। जिंदीक है मुनाफिकीन की सबसे बड़ी सतह पे होता है, जो उसको जिंदीक कहते हैं, अल्लाह माफ करे, जिनके अल्लाह बारे की में बात सूरह माफ बकरा की आयत नंबर 8 भी है कि वो अल्लाह पर और आखिरी दिन पे ईमान रखते हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। वो मुसलमान, वो काफिर ही हैं। मतलब इसका मफहूमतन बयान कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो एक इन्हीं के बात बारे मुझे में है। बताएं, एक वैसे बात से बात निकल गई कि वो फूल आया है कि कोई और है भाई? हेलो दियारतुल जी जी, अपना ही है। शाह जी मैं ही हूँ। चलो सही है। असल च आते ही ना हाजिरी लवाया करो ताकि पता चले फेक आइडियां बड़ियां बनियां ने। शाह जी अपने बंदों की पहचान हो जाती है, क्या हो गया? नहीं मुफ्ती साहब, हम बिल्कुल ही फौरन से पहले आईडी प्रोफाइल देख लेते हैं जाके। अच्छा आदिल भाई, यार मुझे मैंने पर बता दें तो किया, बहुत अच्छा मॉडरेटर है बना वो भी। दो। हाँ गेस्ट ऑप्शन के साथ नीचे से कई बड़े बड़े बुर्ज निकल के चले गए कादियानियों के, और कुछ मरज़ई भी नीचे से गुजरे। अच्छा, वो कोई बात करना चाह रहे हैं जी ज़ुहैब। अच्छा वो जो एक मेरे ख्याल में, मुझे अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, वो जो एक हदीस है या कुछ इस तरह चीज़ है कि अगर मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होते, वो हदीस है या वो क्या चीज़ है, उसके बारे में मुझे बता दें। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु होते। ज़िया भाई जी, वो हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही है, लौ काना बादी नबी जन लकाना उमरा, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। हदीस शरीफ मैं है। ये दलील उनको देने लगा था, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं था कि ये हदीस है या क्या चीज़ है। मतलब जब बात हो रही थी ना, मैं ये उनको ये दलील देने लगा था। जी जज़ाक अल्लाह भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपने हवाला टाइम नोट कर लें, अल मुअज्जमुल कबीर है तबरानी की, जी बिल्कुल। मकतबा इब्ने तैमिया काहिरा, मकतबा इब्ने ताहिरा, जी बिल्कुल। सफ़ा नंबर 298,
मैं लिख लेता हूँ जी। सफ़ा नंबर 298 जी। हदीस नंबर 822 जी हदीस नंबर 820। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। अगला हवाला नोट करिए। जी 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 एक मिनट जी मुफ्ती साहब बिल्कुल। असल में किताब मैं ये फज़ाइल कहने लगा था सहाबा। कि मुझे इन चीज़ों का पता है, लेकिन वो एक एग्जैक्ट जिस तरह आपको पता है ना उस चीज़ का मुझे पता नहीं था कि नंबर कौन सा ये वो कौन सा ना। फिर मैंने कहा एकदम एग्जैक्ट चीज़ ना पता हो तो फिर बताने का फिर मकसद नहीं होता है। कोई बात नहीं, किताब लिखिए, किताब फज़ाइल सहाबा, फज़ाइल सहाबा, फज़ाइल उस सहाबा। अल जुज़ुल अव्वल, जिल्द अव्वल, जी जिल्द अव्वल, किताब सफ़ा नंबर 356। जी सफ़ा नंबर 356। जामिया उम्मुल कुर्रा इसका मतबू है, मक्का मुकरमा। जी उस पे भी ये हदीस आपको मिल जाएगी। जी 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 ये अभी हदीस बस नंबर 519 है। चले अभी जाके ना मैं फिर घंटे तक आपके पास आता हूँ, देखता हूँ क्या क्या ये सारी बातें उधर जाके ना उनकी अभी ब्रॉडकास्ट चल रही हैं, काफी चल रही हैं। जी बेहतर हो गया जनाब। तो देखते हैं जी। अच्छा जज़ाक अल्लाह सर, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ुहैब भाई एक मिनट देखिए, असल में जो है ना ये जो रिवायत है लौकाना बाद नबी लकाना उमर, इसमें थोड़ी बहुत कलाम वगैरह मुहद्दिसीन करते रहते हैं। उनके सामने बुखारी की रिवायत रख दो। कानत फी बनु इसराइल तसूसुहुम, कानत फी बनी इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन। ठीक है, व इन्नहु ला नबिय्य बअदी। तो सहाबा ने पूछा कि क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसयकूनु बअदी खुलफा, मेरे बाद खुलफा होंगे, फयकसुरून, कसरत से होंगे। तो ये रिवायत उनके सामने रख दो, ये बहुत मारूफ रिवायत है। जी 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 कि यहाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि मेरे बाद खुलफा होंगे, तो इसके क्या जवाब है देखो उनके पास। जी जी जज़ाक अल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम दे सर। मुझे तो कुरान पाक की वो 2-3 आयतें आती थी जो मैंने उनको सुनाई है, तो वो कुछ और मतलब निकाल रहे थे। जज़ाक अल्लाह सर, अल्लाह आपको खुश रखे। चलो जज़ाक। ओके जी। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं ना मसरूफ हाँ ते मैं माइक म्यूट किया, मैनू बार बार ओपन करना पै रहा है। ते तुसी ना सारे ही अजे आपस च करो ते कोई पेड़ पिया ते फिर मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं स्पेशल ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम करना आया। अल्लाह सलामतियां ता फरमाए जी। और ज़ियासुल भाई आप किधर गए हो? जी इधर ही हूँ जी मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और तमाम दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम। आदिल भाई, ये मून लाइट नाम का एक बंदा है नीचे, इसको जरा कॉल पे लेना। नहीं नजर आ रहा, प्राइवेसी की होगी। अच्छा जिया भाई, वो तो बड़ा बदतमीज है बंदा, वो जिसे सुबह गुफ्तगू आपकी हो रही थी। वासे नहीं वो पता नहीं रेम स्टेन के क्या नाम है उसकी आईडी का। अच्छा हाँ, वो ऐसे जाहल अनपढ़ बंद, बिल्कुल जाहल मुतलक है, उसको कोई कख नहीं पता है, ऐसे बकवास बस करने के लिए आ जाता है। मतलब कोई होता है ना, कोई इल्मी दलाइल हो, कोई नो कुछ भी नहीं। उसको कलमा नहीं आता पढ़ना, तो इल्मी दलाइल के पहला कलमा पढ़ रहा था वो भी गलत पढ़ रहा था, दूसरा मैंने कहा सुनाओ वो भी नहीं आता, कख भी नहीं आता इनको। वो तो बिल्कुल ही जाहल है, मिर्जा कादियानी है पूरा। दूसरे चलो को थोड़ा बहुत दाल दलिया कर लेते हैं, वो बिल्कुल ही फारग है जी। अच्छा जिया भाई, मैंने नाम ठीक लिया था कोई इसमें, कोई मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई नाम तो नहीं ऐड किया था कि मिर्जा गुलाम कृष्ण कादियानी? नहीं बिल्कुल कृष्ण भी है, रद्दर गोपाल भी है जी। असल में ना ये हमारा अपना छोटी सी एक टीम है 4 बंदों की, हम आपस में फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे थे इनके नाम जो मिर्जा साहब के दिए गए हैं ना,
تو ہم نے اپنے اپنے چوز کیے، تو ان میں سے میں نے جو چوز کیا ہے وہ کرشن ہے نا، تو کسی نے وہ جنرل کرنل سلیکٹ کیا ہے. تو اب ہم جب یہ جا کے ان کی سامنے یہ نام بولتے ہیں نا، مثلا رود مرزا غلام رود گوپال قادیانی، تو یہ غصہ کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ گالیاں ہیں، یہ کہتے ہیں مرزے نے جو گالیاں دی ہیں، تو آپ ان کے نام سے، وہ مرزے نے جو نام رکھے ہیں وہ بولیں گے تو یہ سمجھیں گے گالی دی جا رہی ہے مرزے کو. مرزا دے لے گالی خیر ہے، وہ کہتے ہیں آپ نہ دیں، یہ ساری گالیاں ہیں. نہیں دراصل اور کوئی اپنا نام کرمے خاکی بھی رکھو یار، ان کو پتا کہ مرزا تے بشر دی جائے نفرت بھی رکھ لیا جے. شاہ جی اگر ایسی بات کریں گے نا تو پھر آگے گفتگو بڑھتی نہیں ہے. السلام علیکم. میں صرف یہ دسنا ہے مفتی صاحب، میرا نام یہ لاش ہے. ملک بھائی آپ کالا تے مرزا کالو کہاں سے کیڑا ہے؟ ڈھونڈے اگر آپ کالا کا تو نام کالو یہ بھی لاش پھر ہے؟ رہا ہے اتنے، کالا کالو بھی آ گیا. ہے مینوں تے لگدا علی خان دا کوئی ارادہ بنتا ہے پیا. مصطفیٰ میں ایک نام رکھا سی، میں قاضی یار محمد. کرو ہوں کچھ میرا. ਹੁਣ ਫਿਰ اس آئی ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ڈی ਦੀ کا پہلے ਬਰੋਡ نام ਪਰ کالا ਜਾਣਾ کالو ਪड़ेगा. یلاش سی، میں ہوں پرسوں ہی چینج کیتا اس آئی ڈی کا نام. ہاں جی، میں تو ایک نام لمبا ہے لکھدا، نام چودھری مرزا گجر جے سنگھ بہادر دسوندی. کیونکہ میں مفتی صاحب میں نا یہ لاش ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੇ. ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਫ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਕਸ਼ਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਫ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ یہ لاش ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ. ਲਓ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਚੰਦਾ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੀਨਾ. سکینہ فرشتی ہوگی. ہاں آپ فیمیل آپ فرشتی سی اوپر مرضی. آنا چاہیں گی؟ آپ جگہ بنائیں آپ کے لیے، بزی ہوئیں گی. ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦਿਓ. ਆਪੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ اور ਆ ٹی جی ਜਾਏਗਾ ٹی کہ جی بھی نہیں آ میں گئے. نہیں آنا. خوشحال میں گروپ کس کام ایل بی ہے؟ اچھا ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ، ਟੀਚੀ ਟੀਚੀ, ਮਿੱਠਨ ਲਾਲ, ਦਰਸ਼ਨੀ, ਖਰਾਤੀ, ਹਫੀਜ਼, ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ. ਸਕੀਨਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਗਈ. ਸਕੀਨਾ ਫੀਮੇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਜਨ. ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਰ ایک ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਫ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ ਨਾ, بولیے. ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ. ਉਹ ਨਾ ਕਸ਼ਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਰ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ. ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ. اچھا ضیاء بھائی، یہ جو دارو وغیرہ پیتا تھا، ان کے دو نام تو مجھے پتا ہے، ان کے علاوہ بھی کوئی برانڈ ہے وہ بتا دیں. یہ میں نا تعبیر ہے وے کہ تسی مسیح موعود بننا لے. ਟੌਨਕ ਵਾਈਨ, ਪੋਰਟ ਵਾਈਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਵਾਈਨ, ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਈਨ, ਵਾਈਨ, ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਕੋਲਾ ਵਾਈਨ, ਵਾਈਨ. ਟਾਨਕ ਵਾਈਨ, ਪੋਰਟ ਵਾਈਨ. ਪੋਰਟ ਵਾਈਨ. 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ. ٹانک وائن، کوکو وائن. ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 80% ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ایک اور سوال ہے، ویسے میں نے سنا ہے کوئی مارکیٹ میں، مجھے کوئی حوالہ اگر پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے یا آپ ہی بتائیں گے. یہ جب مرحومہ ممدی بیگم کی شادی ہو گئی تھی، کوئی گنڈے شنڈے بھیجے تھے اس نے ممدی بیگم کے گھر؟ ضیاء بھائی میری آواز آئی ہے؟
जी नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं। सही कोई ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੱਤ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ। ਜਿਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 1 ਵੀਲਿੰਗ ਉਹਨੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। क्योंकि ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है मेरे लिए कि कहते हैं पता नहीं कपड़े शपड़े मरूमा मोमदी बेगम के मंगवाए थे तो ढूंढता था पता नहीं। अच्छा दिल भाई, एक वो खुश अखलाक की डिमांड कर रहे हैं, को कादियानी साहब नीचे आए हैं, तो मलक भाई और हम लोग सारे खुश। मलक भाई तो बहुत अच्छे अखलाक के मलक, हमें पता है, तो मलक भाई इनसे बात कर लें, ये अच्छे अखलाक की डिमांड कर रहे हैं आपसे। वैसे एक खुशहाल पाकिस्तान ग्रुप बंदा एक नीचे कोई आ जाए जी, मेरे से अच्छा तो खुश अखलाक बंदा मुफ्ती साहब हैं और ज़िया भाई हैं, पर इनकी थोड़ी सी खुश अखलाकी मैं अपनी तरफ लेना चाह रहा हूँ। अगर कोई आ जाए तो फिर बड़े प्यार से बात होगी, दलाइल से बात होगी, रूहानी बातें होंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, वो हम तो फरिश्तों का भी इंतज़ार करेंगे ना, वो इर्द गिर्द घूमते हैं, जो मिर्ज़े की किताबें पढ़े ना, वो मक्खियों वाले जो होते हैं इसके मिर्ज़े के ਉਹ पास। ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਦੀਏ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸਦੀਏ ਨਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਤੇ, ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम आशिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं कंट्रोल खुश अखलाकी की बात हुई है, खुश्क अखलाकी की नहीं हुई। जी अदील भाई की मतलब? मतलब कि खुश इखलाकी वो जो आप वो रूबी की ब्रॉड पे जाके नहीं स्टार्ट जो लेते हो